Good morning, students. Today we are going to discuss the next topic of alternating current, that is AC circuit containing capacitor only. So we are going to discuss a circuit in which a capacitor is connected with the source of alternating current. Okay. So हमने ये देखना है कि करंट जो है वो कैपेसिटर में कैसे फ्लो करता है जब हम उसे कनेक्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. सो हियर इज द सर्किट डायग्राम. सेम विल बी डिस्कसिंग हियर. सो व्हाट्स देयर? फर्स्टली द सर्किट. व्हाट इज द सर्किट? सिंपल अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स है, सर्कल में आप देख रहे हो. That is the source of alternating EMF. It has been connected with the capacitor. Capacitor, you know, it is a device which is used to store the charge. We studied it in the first unit. Okay. Now, suppose let us consider a circuit containing a capacitor and source of alternating EMF, and suppose that the alternating EMF that we have connected is given as E is equal to E0 sine omega t. You know, alternating EMF is given as E is equal to E0 sine omega t, where E0 is the peak value of EMF. Okay. Now, when the capacitor will be connected with this source, the capacitor will get charged. So, the charge on capacitor at any given instant of time, at any time, the charge on capacitor Q, that is given as, we did it in first unit, Q is equal to CV. So, here V is the EMF. So Q is equal to C into E, the charge on capacitor at any given time, and substituting E we get Q is equal to C E0 sine omega t. Now this is charge, and this charge is continuously changing with the time because the applied voltage, applied EMF is changing, alternating in nature. So at any time the current flowing through the circuit, we did current is rate of flow of charge. So I is equal to dq upon dt. We take the derivative of this. C is a constant, E0 is a constant, so they are taken outside. Derivative of sine omega t. So formula is derivative d by dt of sine omega t is omega into cos omega t. Okay, so we get C E naught omega cos omega t. Okay, so we rewrite this term as, we rewrite this term in some other way. C E naught, we got C E naught omega cos omega t. So we write this equation as I is equal to E naught divided by 1 upon C omega cos omega t. Okay, which was the equation number 3. We got equation number 3 as E naught into C into omega cos omega t. So that C omega term which was multiplied by E naught, we write that as E naught upon 1 upon C omega cos omega t. Okay, or writing this whole term as E naught upon 1 upon C omega as I naught, we get I is equal to I naught cos omega t, where I naught is the peak current flowing in the circuit, E naught upon 1 upon C omega. Okay, got it? इक्वेशन नंबर 4 में जो E नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा है, हमने उसे I नॉट लिख दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है. ओके, सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 5, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ गई, जिसमें आई नॉट की वैल्यू जो है वो है E नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा. लेकिन हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था कि V is equal to IR, या करंट इज गिवन एज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, तो अगर हम ये हमारी 6 इक्वेशन है, इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे करंट है, ऊपर EMF है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सी ओमेगा. सो 1 अपॉन सी ओमेगा किसके इक्वल है? 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. ओके, सो 1 upon C omega plays the same role as is placed by the resistance. So 1 upon C omega is what? 1 upon C omega is the resistance. Resistance of what? The resistance of circuit. और circuit में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है, so that means
1 upon c omega is called 1 upon c omega is the resistance of capacitor, और उसे हम नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, सो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल XC। यू कैन सी इन इक्वेशन नंबर 8 XC is equal to 1 upon c omega। XC is called रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में ऑफर करता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसके साथ ही जो हमारी इक्वेशन ऊपर बनी थी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, सो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसलिए इसके यूनिट जो हैं वो ओम ही रहेंगे XC के। ओके, सो जो हमारी इक्वेशन 4 आई थी I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी, हमने उसे आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख लिया था। सो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, हमारा करंट आ गया था ऊपर, हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी ये I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। सो वी राइट दिस एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, सो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर आई नॉट इज द पीक करंट थ्रू द सर्किट ई नॉट अपॉन XC। सो हमारे पास करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। EMF हम एज्यूम करके चले थे कि अगर EMF ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या आएगा, करंट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस पाई बाय 2। सो आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम फर्स्ट और 10th इक्वेशन को कंपेयर करें, सो दोनों ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग EMF ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया, बट द डिफरेंस इज व्हाट, EMF इज साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट क्या आया साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, तो हम इसे क्या कहते हैं, वी से कि ऐसे सर्किट में जिस सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी सी कि करंट जो है वो हमेशा ही वोल्टेज से, वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पे चल रही है, तो करंट कितने एंगल पे चल रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, हम इसे लैंग्वेज में कहते हैं कि द करंट लीड्स द वोल्टेज इन सर्किट बाय पाई बाय 2। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बट आगे कौन चल रहा है, आगे करंट चल रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। अगर हम इसका वेव फॉर्म देखें तो वो ऐसे आएगा, यू कैन सी द ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग द वोल्टेज एंड पर्पल लाइन इज इंडिकेटिंग द करंट। जब EMF 0 है उस टाइम पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है, जब EMF मैक्सिमम हुई करंट 0 हो गया, EMF वापस 0 हुई करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करंट EMF से 90 डिग्री आगे चल रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री एंड करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर? So this is the main thing, this is the main concept of the article, that current leads the voltage in the circuit by an angle of pi by 2। कैपेसिटर में जब कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट EMF से 90 डिग्री आगे चलेगा। और फेजर डायग्राम यू नो, फेजर इन टर्म्स ऑफ फेजर्स वी रिप्रेजेंट, सो द फेजर डायग्राम इज एज शोन हियर। यू कैन सी कि ये हमने 2 एरोस बना रखे हैं। सो पहला जो बड़ा वाला एरो है दैट इज इंडिकेटिंग E0 साइन ओमेगा टी, वो हमारी ऑल्टरनेटिंग EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा वाला एरो जो है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। सो E0 जो E है, E का एंगल है ओमेगा टी, और उसके आगे फिर 90 डिग्री एंगल पे करंट चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम, दैट total angle of current is omega t plus pi by 2 and of voltage is omega t। okay, so this is important, this is called phasor diagram। moreover आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड जो है वो E का ज्यादा है और I का कम है, क्योंकि हमने क्या लिखा,
आई नॉट इज ई नॉट अपॉन एक्स सी, सो ई नॉट से उसका वैल्यू कम होगा, सो आई नॉट जो है that is smaller in magnitude, it is represented by the smaller arrow, and E naught is represented by a bigger arrow. Okay, is that clear? So that's all about capacitor and the current AC circuit flowing through the capacitor. There is one another important concept or conceptual question related with this part कि हम जनरली कहते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर लेता है लेकिन एसी को ब्लॉक नहीं करता, तो हाउ डू वी एक्सप्लेन? कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डायरेक्ट करंट जो है हमने पीछे किया कि चार्ज को स्टोर कर लेता है जब हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी व्हाइल नॉट एसी, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? सो हमें पता है, हमने किया दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए, एक रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर और दूसरा कि करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। ओके, सो वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज XC इज 1/C ओमेगा। जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलता है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए 1/0 XC क्या आ जाएगा? XC विल बी इनफाइनाइट, और जब XC इनफाइनाइट होगा, ठीक है, सो XC इनफाइनाइट है DC के लिए, लेकिन AC के लिए ओमेगा की कुछ वैल्यू है, C की कुछ वैल्यू होगी, सो XC की वैल्यू होगी बट कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। सो DC करंट को जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, वाइल AC को रेजिस्टेंस ऑफर करता है लेकिन कंपैरेटिवली कम। सो क्योंकि DC को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वी से दिस एज के अ कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. Okay, so this is a very important concept related with this part. Okay, so that's all about capacitor. I hope that the thing is clear to you. Okay, so that's all about this part. See you again with some other topic. Till then, keep working, keep enjoying, stay safe. Thank you.